Good evening, children. Same question I would like to. What is this actually? क्या दिख रहा है आपको? रोबोट दिख रहा है. और क्या दिख रहा है? ग्राफ दिख रहा है. कौन से चैप्टर में से हो सकता है क्वेश्चन? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन सा फॉर्मूला अपने पास है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन सा फॉर्मूला है? डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और k:1 वाला. यानी क्वेश्चन जो भी होगा हमें इसी के अंदर इसको बिठाना है. क्वेश्चन जो भी होगा हमको मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला या फिर k:1 में बिठाना है. राइट. अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है. गुरुवीर and Arushi built a robot that can paint a path. It moves on a graph paper. Some coordinates of the points are marked on it. It starts from 0, O00, moves to the points in order in straight lines and ends at O00. तो देखिए गुरुवीर और आरुषि ने they have made a robot. And the special character of that robot is it can move on the graph paper. रोबोट क्या कर रहा है? ग्राफ पेपर के ऊपर वो मूवमेंट कर रहा है कुछ पॉइंट्स के ऊपर. इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंड अगेन इट विल मूव सर्टेन पॉइंट्स एंड कम बैक एंड सेटल एट द ओरिजिन. ये है इसका व्हाट इज इट सिचुएशन. अ रोबोट इज डिवाइस्ड बाय अ स्टूडेंट एंड दैट रोबोट कैन ट्रेस ग्राफ. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? Arushi entered the points. See, as entered the points P8, 6, 12, 12, yes, -6, 6 in order. The path drawn by robot is shown in the figure. So this is the path drawn by the robot that is there in the picture, right? Now, based on the above information, answer the following question. यानी robot, there is a robot which can move on the graph and the path of the robots are given in the form of coordinates. Now with the help of the coordinates we have to answer certain questions. कुछ questions के answers हमको करने हैं. So what is that questions? What is this question? Let us see. Well, let us see what is the first question. First question says determine the distance OP. Determine the distance OP. See, O is the origin. O is the origin. And origin is 0, 0. What is P here? P is 8 and 6. तो OP का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? डिस्टेंस फॉर्मूला. या डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे या क्योंकि ये ओरिजिन से है तो डायरेक्टली आपको आंसर आ सकता है क्या? क्या फॉर्मूला आप यूज करोगे? √x² + y². क्योंकि x2 और x1 क्या है? x1 y1 0 है. तो आप डायरेक्टली या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो या तो क्योंकि मार्क्स 1 मार्क्स सिंस द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर ओनली 1 मार्क्स सो व्हाट आई विल डू हियर OP इज इक्वल टू √x² + व्हाट y². इसी को यूज कर देता हूं मैं. अगर x2 - x1 भी करूं तो दोनों पॉइंट्स क्या है? 0, 0 है. कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. तो डायरेक्टली क्योंकि मार्क्स से यू शुड बी स्मार्ट इनफ to write the answer according to the question. Unnecessary if you write extra part then your time will be wasted in that. So directly आप क्या कर सकते हो? OP is equal to x² + y² यानी 8² + 6² and that is equal to how much? 64 + 36 and that is equal to how much? 100 √100 and that is equal to how much? 10 units. So first part is over. आपको पूछा है O और P के बीच की दूरी. O है 0, 0, P है 8, 6. तो since the point starts from the origin, I am not writing the complete distance formula. I am simply writing √x² + y². That will fetch you 1 marks. Am I clear? QS is represented by the equation 2x + 9y is equal to 42. Find the coordinates of the point where it intersects y-axis. देखिए, where it intersects y-axis, that is important. The point intersects at y-axis. What does it mean? अगर पॉइंट y-axis पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट का क्या हाल होगा?
x क्या होगा, 0 होगा, सिंपल सी बात है। सो आप वहां पर लिख सकते हो कि सिंस द पॉइंट इंटरसेक्स, सी इस पॉइंट को आप ले सकते हो, द पॉइंट इंटरसेक्स इन y एक्सिस, सो x कोऑर्डिनेट इज व्हाट, 0। इफ द पॉइंट इंटरसेक्ट एट x एक्सिस देन y कोऑर्डिनेट इज 0। तो लिखिए आप, सिंस द पॉइंट इंटरसेक्ट्स एट y एक्सिस, since the point intersects at y axis, x is equal to how much, x is equal to how much, so 2 into 0 plus 9y is equal to how much, is equal to how much, 42 divided by 3 14s are 12, 3 3s are 9, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बच्चों, x कोऑर्डिनेट इज 0 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 14/3। इतना लिखोगे तो आपको 1 मार्क मिल रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे कहते हैं कि द पॉइंट इंटरसेक्ट्स एट y एक्सिस, x एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x होगा 21, सिंपल सी बात है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा, राइट, यानी r 4.8y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट OP इन सर्टेन रेशियो, इन सर्टेन रेशियो, ये कुछ हिंट है क्या आपके लिए, अगर इन सर्टेन रेशियो होता है तो आप क्या यूज करते हो, k:1 यूज करते हो, वेरी नाइस, k:1 यूज करते हो। देन आपको क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो, पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। फिर से एक बार 2 मिनट के लिए हम फिगर ड्रॉ करेंगे। पॉइंट कौन सा है वो, 4.8 और y किसको डिवाइड कर रहा है बच्चों, o और p को डिवाइड कर रहा है। o और p, देखिए o यानी ओरिजिन है, o यानी ओरिजिन है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, थोड़ा देखिए आप थोड़ा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, 0 0 है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 है। p का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, p का कोऑर्डिनेट क्या है 8 और क्या है, p का कोऑर्डिनेट है 8 और 6, और कौन सी लाइन डिवाइड कर रहा है उसको, कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, r उसको डिवाइड कर रहा है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 4.8 और y इस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। इस यानी यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, लेट द रेशियो बी व्हाट, k:1। इसका फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा इसका निकम बताओ, बताओ थोड़ा फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुमने लिखा था ना बहुत बार, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, क्या लिखोगे आप, pxy इज इक्वल टू व्हाट, k+1 तो रहेगा बच्चों, यहां पर k+1 तो रहेगा ही रहेगा, यहां पर भी क्या होगा, k+1 तो रहेगा, मगर न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, kx2 प्लस व्हाट, kx2 प्लस x1, और यहां पर क्या आएगा, ky2 प्लस y1। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, वरना मैंने आपको टेक्निक बताया था। मैं यहां पर कैसे यूज करूंगा उसको देखिए आप थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था टेक्निक। पॉइंट में यहां पर लिखूंगा pxy आपको दिया है, कितना दिया है यहां पर आप देखो, कितना दिया है 4.8, और क्या दिया है आपको, क्या दिया है 4.8, और आपको क्या दिया है y, और k:1 होने की वजह से मैं यहां पर क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा k+1, और यहां पर भी क्या लिखूंगा मैं k+1, राइट। अब मुझे इंटू करना है तो मैं कैसे इंटू करूंगा, k×8 प्लस क्या 1×0। बच्चों क्या 1×0 लिखने की जरूरत है, डू रियली फील दैट इट्स नेसेसरी फॉर मी टू राइट 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज हाउ मच, सो डायरेक्टली राइट हियर व्हाट 0, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि y के लिए आपको क्या बताया था टेक्निक मैंने आपको, इफ यू रिमेंबर, k into what 6,
तो k इंटू 6 प्लस, दिख रहा है क्या? देखो इंग दिखता है? क्लियर? नहीं दिखता। ओके फाइन। इसको हम एक काम करेंगे, फिर से एक बार चाहिए तो लिखेंगे k इंटू क्या होगा 6 का, अभी दिख रहा है k इंटू 6 प्लस 1 इंटू हाउ मच, और 1 इंटू 0 कितना होता है? 0 होता है। अब इसको मैं लिखूंगा 4.8 y राइट इज इक्वल टू k इंटू 8, कितना होता है बच्चों? k इंटू 8 कितना होगा? 8k प्लस 0 कितना होता है? प्लस वॉट? k प्लस 1। फिर k इंटू 6 कितना होता है बच्चों? 6k डिवाइडेड बाय k प्लस वॉट 1। एम आई क्लियर? फाइन। अब हम क्या करेंगे, x करस्पॉन्ड्स टू x, यानी मैं यहां पर क्या करूंगा 8k बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच? 4.8। और y इज इक्वल टू वॉट? y इज इक्वल टू वॉट? 6k डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ओके, तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस बिकम्स व्हाट? 8k 4.8 इंटू k कितना होता है बच्चों? ये 4.8 इंटू k कितना होगा? 4.8k। और ये 4.8 इंटू 1 कितना होगा? 4.8 होगा। तो अब ये 8.0 में से 4.8 माइनस कर दूं मैं, तो कितना होगा बच्चों? थोड़ा देखो, पॉइंट वॉट 3.2k इज इक्वल टू वॉट? 4.8 होगा। तो k इज इक्वल टू कितना होगा? 4.8 डिवाइडेड बाय 3.2। एम आई राइट? तो अब ये पॉइंट कैंसल्स विथ पॉइंट, 16 3s are 42, 16 2s are हाउ मच? तो k की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? तो रेशियो, पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो कितना होगा? k is to 1 is equal to 3 is to 2, राइट? अब नेक्स्ट y की वैल्यू पूछिए आपको, तो y के लिए हम यहां पर क्या करेंगे? 6 इंटू, थोड़ा दिमाग लगाइए आप, यहां पर टाइम वेस्ट मत करो। 6 इंटू k, 3/2 यानी कितना होगा बच्चों? ये 3/2 यानी कितना होगा? 1.5 होगा। तो ये 6 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 1। बच्चों 6 इंटू 1.5 कितना होता है? 9, या मैं कहूंगा 9.0। और ये 1.5 प्लस 1 कितना होगा? 2.5। ये कैंसल होगा, तो दिस इज 90 बाय हाउ मच? 25। और इसको अगर मैं कैंसल करूं तो कितना होगा बच्चों? 15 कैरी 3 30 होगा। तो 5 6 हाउ मच? 30, यानी 3.6 होगा। यानी k इज टू रेशियो 1 लेकर हमने क्या किया? एक तो रेशियो ढूंढा, और फिर हमने क्या किया? y की वैल्यू फाइंड आउट की। ये एक प्रॉब्लम तुमको दिया है, कितने मार्क के लिए दिया है? 2 मार्क के लिए दिया है। तो आप यहां पर अगर आपको प्रॉब्लम आ गया तो अच्छी बात है, वरना सम फॉर्मूलेस वगैरह लिख के आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, छोड़ना मत। डोंट लीव इट ब्लैंक, राइट सम फॉर्मूला एंड कम बैक। राइट, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट PQ बाय OS इज इक्वल टू 2/3। बच्चों आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? P कितना है बच्चों? यहां पर 8 6 है। और PQ कितना है यहां पर आपके पास? Q कितना आपके पास? 12 और 2 है। तो ये क्या होगा? दिस इज x1 y1 और दिस इज व्हाट? x2 y2, राइट? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? PQ इज इक्वल टू व्हाट? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस व्हाट? y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो अब इसको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो आप। 12 माइनस 8 स्क्वायर प्लस व्हाट? 2 माइनस 6 स्क्वायर। तो 12 माइनस 8 इज हाउ मच? प्लस 4 स्क्वायर, एंड 2 माइनस 6 इज हाउ मच? तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? ये
और -4 का स्क्वायर और 16 + 16 हाउ मच, हाँ, तो √32 और √32 यानी कितना होगा 16 × 2 कितना होता है बच्चों ये 4√2 यूनिट्स। ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट, लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ PQ। अब हमको OS चाहिए, O कितना है बच्चों, O इज द ओरिजिन, O इज द ओरिजिन, यस कितना दिया आपको -6 और 6। अभी मैंने आपको बताया था इफ द पॉइंट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, तो आप क्या कर सकते हो, देखिए ये ओरिजिन से पॉइंट है, तो ये क्या करोगे आप डायरेक्टली OS इज इक्वल टू अंडर रूट, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, x² + y², डायरेक्टली यूज करो। तो x² यानी कितना होगा बच्चों ये -6 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर कितना होता है और +6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ओके, 36 + 36 कितना होगा बच्चों ये √72, और √72 को हम कैसे लिख सकते हैं 36 × 2 यानी कितना होगा यहां पर 6√2 यूनिट्स, कितना होगा। मगर आपको क्वेश्चन पूछा क्या है, आपको क्वेश्चन आपको पूछा है क्या फाइंड आउट करने के लिए, नहीं, आपको क्या बोला है PQ और OS को डिवाइड करो, PQ को और OS को डिवाइड करो। PQ कितना आपके पास, PQ कितना आपके पास, OS कितना आपके पास 6√2, तो ये √2 क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया, तो ये 2 2s are 4 और 2 3s are कितना हो गया आंसर, आप देखो, यही आपको प्रूव करना है क्या, यही आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट PQ/OS इज इक्वल टू √2/3। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, कौन सा इजी लग रहा है, पहला वाला इजी लग रहा है, इसके बाद वाला इजी लग रहा है, ऑप्शन में पहला वाला इजी लग रहा है, ये वाला इजी लग रहा है। तो देखिए ये वाला इजी लगने के लिए, लगने से पहले बच्चों के दिमाग में पहला क्या ख्याल आता है कि सर ये 2/3 कैसे आएगा सर, थोड़ा ध्यान से यहां पर ध्यानपूर्वक जो बच्चा यहां पर देखेगा, यहां पर क्या बोल रहा है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपके दिमाग में पहली बात आ जानी चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता है। किसका डिस्टेंस निकालना है, P और Q के बीच के डिस्टेंस निकालना है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है 8 और 6 है, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 12 और 2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, जो आंसर आएगा उसको लिख दो। उसके बाद OS आपको चाहिए, OS यानी क्या है, ये है आपका व्हाट इज इट, ओरिजिन है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0 होता है, तो 0 0 होता है, तो वहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे आप √x² + y², तो डायरेक्टली अब क्या होगा 6 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 यानी कितना होगा ये 6√2। तो भले ही देखने में प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगता हो, मगर सॉल्व जब आप करते हो तो कोई भी CBQ, अभी तक मेरे ख्याल से हमने सभी CBQ सॉल्व कर दिए, सभी चैप्टर के ऑलमोस्ट। कोई चैप्टर बचा हो तो मुझे बताना, अगर कोई बचा हो तो मुझे बताना, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे उसके अंदर। हाँ, ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स आई हैव ट्राइड टू कवर।